Good morning students, welcome to my YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let us start. Students, in the last class of trigonometry we discussed the important concepts, tools and techniques of trigonometry and also saw the important formulas which you will need to solve various types of questions on this chapter from various books from different publishers. And now today in this video we will solve some questions of your NCERT book from exercise 8.1 to make your concept more clear. But before we start, if you are new on my channel and have not subscribed the channel, then subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you get the latest update from this channel and don't miss any useful video from this series. So let us start. Students, you can see the first question of exercise 8.1 of your NCERT book. In triangle ABC, right angled at B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter, and we have to find the value of sin A, cos A, sin C and cos C. So let first we find the value of sin A, cos A. You can see the triangle on the board ABC in which angle B is right angled, that is angle B is 90 degree. And we have to find the value of first sin A and cos A. So students, let me solve the first question of exercise 8.1 from your NCERT book, which is in a triangle ABC right angled at B, where AB is 24 centimeter and BC is 7 centimeter, we have to find the value of sin A, cos A and then also the values of sin C and cos C. So let first we calculate the value of sin A and cos A. और स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है और उन्हें ये क्वेश्चन हार्ड लगता है। वो इसलिए कि कभी ए बी आपका बेस हो जाता है, कभी ए बी परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये एक बहुत ही ग्रेट मैटर ऑफ कन्फ्यूज़न है कि किस तरह सेम साइड, एक ही क्वेश्चन में सेम साइड समटाइम्स बेस बन जाता है और समटाइम्स परपेंडिकुलर बन जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये तो और हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो साइड लॉन्गेस्ट होता है और इसे ही हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हेयर हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो गया, AC इज द हाइपोटेन्यूज। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ AC एंड इन द लास्ट क्लास we have studied that hypotenuse equal to under root p square plus b square. And what is p? Perpendicular and b is base. और इस क्वेश्चन में ख़ासकर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है कि BC समटाइम्स बेस बन जाता है और समटाइम यही परपेंडिकुलर बन जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, आपका वो कन्फ्यूज़न श्योरली आज ख़त्म होने वाला है और यू विल रियली एंजॉय दिस वीडियो। तो लेट फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। और स्टूडेंट्स, एक बात का यहाँ ख्याल रखेंगे, इट विल बी बेटर कि हम H, P और B सिंबल को यूज़ करने के बजाय डायरेक्ट AB, BC, AC जो भी साइड होगा वो हम यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ हाइपोटेन्यूज आपने देखा 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है और AC हाइपोटेन्यूज है। तो हम H ना लिख कर AC जो इस साइड का नेम दिया गया है इस क्वेश्चन में, हम वो AC ही लिखेंगे ना कि H। तो AC, और हमें तो मालूम है कि ये हाइपोटेन्यूज ही है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जनरली जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं वही हमारा बेस होता है और जो वर्टिकल लाइन होते हैं वही हमारा परपेंडिकुलर होता है, डेट इज़ P, और ये हमारा बेस B, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फ्रॉम दिस फार्मूला। एंड P, व्हाट इज P? द वर्टिकल लाइन AC, इट इज़ वर्टिकल लाइन AB स्क्वायर और प्लस और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा BC है, डेट इज़ BC स्क्वायर। देन वी विल यूज़ द वैल्यू ऑफ AB and AC. AB is 24, that is 24 square, plus BC is 7, that is 7 square, and from here 24 we know the value of 24 square 576 and the 7 square is 49, and when you add then 576 plus 49, then 9 6 15 5 carry 1 4 7 4 11 1 12 2 carry 1 and 5 1 6 625, and we know 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25
that means 25 into 25, and finally we get 25. Therefore AC, what is the value of AC? AC is 25, and this is the value of hypotenuse. And now we have the values of all the sides. AB 24, BC 7 was given, and AC calculated here 25 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स हमें AC की वैल्यू पता चल गई कि AC 25 सेंटीमीटर है, और आप इस वैल्यू को यहाँ लिख भी सकते हैं. और अब हम फाइंड करेंगे साइन A की वैल्यू. तो स्टूडेंट्स इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन A डेट मीन साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, कॉस थीटा B बाई H एंड टेन थीटा P बाई B. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है. फिलहाल मैं आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पर लिख दूँ कि हम लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा इक्वल टू P बाई H एंड कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H. तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? साइन A डेट मीन्स P बाई H यूज़ करना है. और अगर हम ये देखते हैं कि P तो हमारा परपेंडिकुलर तो हमारा AB है, और H दैट इज़ हाइपोटेन्यूज AC है, और इसे हम लिख देते हैं AB अपॉन AC, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा. वो क्यों? क्योंकि इस फिगर में आपको AB परपेंडिकुलर तो दिख रहा होगा, लेकिन जब हमें साइन A की वैल्यू निकालनी है तो ये A जो कि अभी ऊपर है, इसे हमें इस फिगर को रोटेट कर कर A को हॉरिजॉन्टल लाइन में लाना है. तभी जाकर हम करेक्ट वैल्यूज़ ऑफ P और B को देख पाएंगे और उसे डिसाइड कर पाएंगे. तो लेट वी यूज़ द मेथड्स ऑफ रोटेटिंग पिक्चर एंड फाइंड द करेक्ट वैल्यूज़ ऑफ P एंड B. तो सो स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए मैंने इस फिगर को इस पेपर पर भी बनाया है. आप देख सकते हैं कि ABC इज़ द सेम एंगल, सेम राइट एंगल ट्रायंगल in which AB is 24 सेंटीमीटर एंड BC is 7 सेंटीमीटर. और हमें वैल्यू निकालनी है साइन A की. तो ये A जो है, ये एंगल A हमारा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ये साइड हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. तो अब हम इसे क्या करेंगे? इस तरह ये रोटेट कर देंगे. तो अब आप देख सकते हैं कि A हमारा एंगल A जिसे हमें निकालना है यहाँ एंगल A, वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ चुका है. और अब इस कंडीशन में जो हमें वर्टिकल साइड दिखेगा वही हमारा परपेंडिकुलर होगा, और जो हॉरिजॉन्टल दिखेगा वो हमारा बेस होगा. तो यहाँ परपेंडिकुलर हमें क्या देख रहे हैं? BC. तो BC हमारा परपेंडिकुलर होगा और AB बेस होगा. तो साइन A की वैल्यू तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होती है, और परपेंडिकुलर डेट इज़ वर्टिकल लाइन BC, डेट मीन्स हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. और हाइपोटेन्यूज तो आपका फिक्स होता है, डेट मीन्स 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड है वो हमारा हाइपोटेन्यूज है. बस हमें परपेंडिकुलर और बेस को ही डिसाइड करना होता है. और जो भी एंगल स्टूडेंट्स आप याद रखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 90% स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करते हैं. और अगर आप इस बात को आज समझ लेते हैं तो आप ये गलती करने से बच जाएंगे. सबसे पहले तो हमें जो एंगल निकालना है वो एंगल जिस साइड पे बन रहा है वो साइड हमारा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. और उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि जो हमारा वर्टिकल लाइन आ रहा था वही परपेंडिकुलर है, और जो हॉरिजॉन्टल है वो बेस है. तो हेयर BC इज़ द परपेंडिकुलर डेट इज़ P एंड P अपॉन H. तो साइन A हमारा क्या हो गया? BC अपॉन AC. तो BC, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ BC, इट इज़ 7, that is 7 and hypotenuse is 25, that is sin A की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गई 7 अपॉन 25. तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारी sin A की हो गई. एंड नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A. cos A, तो स्टूडेंट्स फिर से वही टेक्निक अपनाएंगे, रोटेटिंग द फिगर. और ये रहा आपका ट्रायंगल जो आपके क्वेश्चन में गिवन था. ABC इज़ अ ट्रायंगल, और हमें cos A की वैल्यू निकालनी है, डेट मीन्स एंगल हमारा A है. तो A यहाँ ऊपर नहीं होगा. A जो भी एंगल हमें निकालना है वो हम फिगर को इस तरह रोटेट करके एडजस्ट करेंगे कि वो हमारा बेस में आ जाए. तो चलिए इस फिगर को हम इस तरह रोटेट करते हैं. तो अब ये हमारा एंगल A हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया है, एंगल A हॉरिजॉन्टल लाइन में आ गया है. तो अब हम देखेंगे कि हमारा बेस क्या है, क्योंकि cos A की वैल्यू B अपॉन H होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हमें बेस चाहिए, और हमने पढ़ा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वही बेस होता है, और जो परपेंडिकुलर लाइन होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? AB, डेट मीन्स AB इज़ द बेस,
एंड हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है AC। डैट मीन्स cos A की वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन AC। और स्टूडेंट्स अगर आप इस फिगर को रोटेट नहीं करते हैं तो आप देखिए आपसे क्या मिस्टेक हो जाएगा, आप इस BC को बेस लिख दीजिएगा, जबकि आफ्टर रोटेटिंग द फिगर BC आपका परपेंडिकुलर हो रहा है। तो cos A इक्वल टू AB अपॉन AC एंड वी नो द वैल्यूज ऑफ AB। What is AB? It is 24 and what is AC? It is 25. That means cos A की वैल्यू आपकी आ गई 24 अपॉन 25। तो ये रही आपकी cos A की वैल्यू, और sin A की वैल्यू तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे 7 अपॉन 25। दैट इज़ ये sin A की वैल्यू हो गई और ये cos A की वैल्यू हो गई। देन नाउ स्टूडेंट्स इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमें sin C और cos C की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सबसे पहले sin C की वैल्यू निकालते हैं। और sin C हमारा देख सकते हैं आप कि एंगल C हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में ही है, इसलिए इस फिगर को अब रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एंगल हमें फाइंड करनी होती है और वो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही होता है, तो हम फिगर को रोटेट नहीं करते। तो sin C और sin C की वैल्यू हमें sin थीटा की वैल्यू हमें मालूम है P/h। तो जब ये C है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये बेस हो गया और AB वर्टिकल लाइन ये परपेंडिकुलर हो गया। तो sin C आपका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो हमें मालूम है कि फिक्स है। तो sin C इक्वल टू AB अपॉन AC, दैट मीन्स 24 एंड AC इज 25। देयरफॉर sin C इक्वल टू 24 अपॉन 25, ये वैल्यू आपकी हो गई। सिमिलरली cos C की वैल्यू निकालनी है, और cos C हमें मालूम है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो C ये हो गया, तो बेस हमारे क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज BC, और हाइपोटेन्यूज इज फिक्स AC, दैट मीन्स BC इज 7 एंड AC इज 25। देयरफॉर cos C की वैल्यू आपकी हो गई 7 अपॉन 25। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा। Now students, let we solve question 2 of exercise 8.1 which you can see on the board. In the given figure, find tan P minus cot R. And you can see the triangle PQR given on the board, in which PQ is 12 cm and PR is 13 cm. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कि जिस साइड की वैल्यू गिवन नहीं है वो साइड की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो QR इक्वल टू अंडर रूट, और हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा है कि QR इस ट्रायंगल में अगर देखें तो ये आपको बेस दिख रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल साइड है, ये बेस है। और वी हैव स्टडीड बेस इक्वल टू अंडर रूट h² माइनस p²। तो h² माइनस p², QR इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज इस फिगर में PR² माइनस p², दैट मीन्स PQ²। एंड वी नो द वैल्यूज, QR इक्वल टू स्क्वायर रूट PR, ये PR आपका 13 स्क्वायर माइनस PQ इज 12 स्क्वायर। नो QR इक्वल टू अंडर रूट 13 स्क्वायर 169 माइनस 12 स्क्वायर इज 144, एंड फाइनली 169 माइनस 144 it is 25, and from here finally Q is 5 centimeter. Then value of Q is 5, and now we will find the value of tan P इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने पढ़ा है इन द लास्ट वीडियो tan थीटा इक्वल टू P/B, दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan P की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो tan P परपेंडिकुलर, और इस फिगर में हमें दिख रहा है कि परपेंडिकुलर इज़ PQ और बेस इज़ QR। तो अगर हम इसे लिख देते हैं PQ अपॉन QR, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखें कि अगर हम tan P इक्वल टू PQ अपॉन QR लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस ट्रायंगल में तो हमें परपेंडिकुलर PQ ही दिख रहा है और बेस हॉरिजॉन्टल लाइन QR ही दिख रहा है, तो PQ अपॉन QR, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, tan P इक्वल टू निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल को रोटेट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा मेथड है जो आपके सारे कन्फ्यूज़न को किल कर देगा। जिस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है वो एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम लोग रोटेटिंग फिगर टेक्निक यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द फिगर, यू कैन सी PQR इज़ द गिवन ट्रायंगल,
और हमें tan p की वैल्यू निकालनी है, ये tan p। तो इस p को पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाएंगे, जिसके लिए हम ये फिगर को इस तरह रोटेट कर देते हैं। तो अब ये हमारा p, ये p जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया PQ, और अब हमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है वही हमारा बेस है, और जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है वही हमारा परपेंडिकुलर है। तो नाउ यू कैन सी हेयर कि परपेंडिकुलर QR हो गया और बेस PQ हो गया। तो tan P की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स QR अपॉन बेस इज PQ, और यही हमारी करेक्ट वैल्यू होगी tan P की। तो tan P इक्वल टू QR अपॉन PQ, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ QR अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 5, एंड PQ, व्हाट इज PQ, इट इज 12, दैट मीन्स tan P की वैल्यू हमारी आ गई 5/12। और स्टूडेंट्स अब हम लोग फाइंड करेंगे cot R की वैल्यू, cot R। तो R सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये जिस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है क्या वो एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। तो यहाँ R आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसलिए इस फिगर को फिर से रोटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी फिगर में जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है वो बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर लाइन वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा है कि cot थीटा क्योंकि tan का इन्वर्स होता है और tan P/B है, इसलिए आपका ये B/P होगा। तो cot R B/P, B दैट इज बेस, हॉरिजॉन्टल लाइन बेस, QR अपॉन P वर्टिकल लाइन PQ। तो QR अपॉन PQ, और हम लोगों ने QR की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुकी है 5 और PQ इज 12, देयरफॉर cot R इज 5/12। और फाइनली हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी tan P माइनस cot R, और tan P की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 5/12, एंड cot R इज ऑल्सो 5/12, and when you subtract this taking the LCM of denominators 12 and 12, then it will be 5 minus 5, that is 0/12 यानी 0, और this is your answer, this is final answer, that means the tan P और cot R की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो स्टूडेंट्स ये थे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 8.1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, और हमें बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, लेकिन चूंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस सीरीज़ की सारी यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।